Ji, Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to Pakistan Institute of Corporate Governance, also known as PICG, a stakeholder awareness webinar series. Today's session focuses on a highly relevant and growth-oriented topic, PSX Growth Enterprise Market Board, that is called GEM Board, a platform for growing businesses. This webinar aims to enhance awareness among the stakeholders about the GEM Board at Pakistan Stock Exchange, an innovative platform designed to facilitate capital raising, visibility, and growth opportunities for emerging enterprises and startups. Our goal today is to provide a clear understanding of the GEM Board, beginning with its overall purpose and how it serves as a dedicated platform for growing enterprises. We will explore why companies should consider listing on the GEM Board, along with the key eligibility criteria and regulatory requirements involved. The session will also highlight the key benefits available to businesses, examining the differences between the GEM Board and the main board, and explain how the GEM platform can support scalability and long-term growth. This session is particularly valuable for entrepreneurs, SME owners, family business owners, corporate leaders, advisors, and professionals who are looking to explore capital market opportunities. My name is Ghazain Khan, and I serve as Manager Governance at PICG. PICG is committed to promoting best practices in corporate governance across Pakistan with a focus on transparency, board effectiveness, and shareholder awareness. Through initiatives like this webinar, we strive to strengthen the governance ecosystem and support sustainable business growth. We are honored to have with us today a distinguished speaker, Syed Ahmed Abbas Sahab, Head of Business Development and Listing, Pakistan Stock Exchange. Syed Ahmed Abbas brings extensive experience in capital markets and plays a pivotal role in driving listings and facilitating companies access to equity financing through PSX platforms, including the GEM Board. The session will begin with a presentation by Ahmed Sahab, where participants will gain insights into the GEM Board and its strategic importance. This will be followed by a Q&A session, where participants are encouraged to actively engage by submitting their question in the chat box or by raising their hands after completing the presentation. Without further ado, let us begin the session. I invite Syed Ahmed Abbas Sahab to start his presentation. Over to you, sir. Thank you very much, Ghazain. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for attending the session. Hopefully, we'll be able to communicate today what our GEM Board is about and how it can help businesses grow. It's going to be an interactive session. First, I'll do my presentation, as Ghazain said, and then we'll definitely get into the Q&A, because after this, I'm sure a lot of you will have a lot of questions. So we shall start off with some background on what Pakistan Stock Exchange is. You must have heard about it, Pakistan Stock Exchange, and seen it on the news all the time, that market upar ho gayi, niche ho gayi, and you must have seen PSS क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. So let me give you a brief overview. So PSX is basically Pakistan Stock Exchange, the only bars in Pakistan जहाँ पे कंपनीज आके लिस्ट होती हैं और उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं. 1947 में and 1949 में rather we were incorporated and limited by guarantee. There was another stock exchange, Lahore Stock Exchange and Islamabad Stock Exchange, which actually were integrated with and into Karachi Stock Exchange, and a national bars by the name of Pakistan Stock Exchange emerged. Moving on, I'll brief you a little bit about our shareholding. Next slide, please. We are next slide, please. Okay, so this is our shareholding structure at this point in time. We are owned 40% by the Chinese consortium, which includes China Financial Futures Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, along with Park China and HBL. And 60% of our shareholding is available to general public, corporate entities, and other foreign investors. So this is a brief on our shareholding. Before we move into the main presentation, I would like to give you a few stats, a few numbers. At this point in time, our market capitalization, which is actually the
is 18.93 trillion rupees, which is around $68 billion, with the listed companies, 538 listed companies. Our average daily traded value is around 57.2 billion rupees, which in USD terms is $205 million per day. And the 100 index, as you all know, has moved from 125,000 to 170, touching a high of 189,000. There's some person who cannot hear. Am I audible to all? Hussein Rashid, can you hear us? Please continue, Okay. Abbas sahab. It's जी जी audible. जी 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 जी. So the returns have been really good over the past 2, 3 years. Moving on. Okay. So where does PSX stand as against regional markets? You can see that we are in the top tier. Our 1 year return is 42.26%. Our 3 year return is 63.68%, which is actually 64%. And our 5 year return is 15.25. So in the region, we stand among the top tiers. You can see all the other exchanges, especially if you see India, the 1 year return is in negative. We stand at a good place. So, we can reasonably say that this is a great platform to raise capital for the companies. Moving on. Okay. So we have around 563,372 yuans investors with us. This means that we have a huge and a wide investor base, which obviously we plan to expand on, and we are making a lot of efforts for it as well. And our average number of yuans, that is the investors who are opening the accounts with us, is 20,000, right? It's the average, which has, increased from 8,000 in 2025, calendar year 2025, to 20,000 in to calendar year 2026. Just last month in May, we opened around 19,500 investor accounts. And the good thing about it is that almost most of these UIs that are opening are Gen Z and the younger lot that is participating, because that is where the bulk of our population is. So the investor base is widening, which means that if you plan to list your company and want to raise capital, the investor base would be very wide, and the outreach would be phenomenal. Moving on. So this year we've had this has been a stellar year. We have had 11 listings so far, and we have approved around 14 listing applications. Considering the fact that the last few years went very dry, but with the market going up, uh, corporates have found our platform to be one of the best platforms to raise capital. And just recently, we've had one of the biggest, in fact, the second biggest listing in the history of that has in the last 25 years. 2025 years. So that was SLM, and they raised around 8 billion rupees from our platform for their company. You must have heard about it. If any one of you invest, Service Long March. It's a tire company, a Chinese joint venture, and it has done extremely well. And so have the other IPOs, because the responses that we have received have been overwhelming in all our listings. This is basically an overview of the recent IPOs in Pakistan, and you can see the returns have been really good, barring a few. But we are hoping that these few that are in the red will also gather momentum and return and give a good return to the shareholders. So all in all, I think we can say that it has been
a great year so far, and we're hoping that it'll just get better from moving on. And these are some multiples that we have actually gathered for you. You can see that the multiples, as per the industries, are excellent. For technology, it's 19. I mean, that's the new economy we are talking about these days. So yeah, that is great. 19 multiple. I mean, if your share price is 1 rupee, you can get a multiple of 19. That is, you can sell it to the market for 19 rupees. And banking, since it's old economy, although there are a lot of banks and they're huge banks, so the multiple is not that high. It's 7.39. And pharma and healthcare is 13.18. Cement, another old economy product, it's 8.92. Food and FMCG, I mean 20.91, great multiple. Uh, 10.44 for textiles, even textiles is doing good, and for engineering it's 12.02. So you see that food and FMCG and technology, they outweigh all the other uh, uh, sectors. Having said that, it actually depends on the company that is being listed. What are the fundamentals of the company, and what exactly are their books saying, how strong they are financially. Next slide, please. So Growth Enterprise Market Board, as Ghazain explained earlier, is a board, is a listing platform which is aimed at facilitating growth-oriented businesses, whether small, medium, or greenfield businesses, to raise capital to fund their growth and expansion plans. Now, GEM board offers companies flexible listing requirements in recognition of the company's growth phase. So previously there was only one board, which was for which is our main board, which is actually for premium companies and which had much more stringent requirements. I'll let you know the requirements in the upcoming slides. But we felt that there is a need to fund small businesses as well. There are around 5.2 million SMEs in Pakistan, which we feel require a lot of help, and there is a severe lack of awareness among them that there is a board available at PSX, which can help them corporatize, grow, and help them in scaling their businesses. So I'll tell you a bit about Jamboard, and before I delve into the requirements, which you may find boring, I'll let you know why one should list on the capital market. Next slide, please. So obviously, traditional financing pain points and PSX, what PSX brings to the table. So traditionally, you see there are high borrowing costs, the collateral requirements, the family equity diluted across generations, limited investor visibility and brand recognition, succession conflicts and family businesses, and no proper exit route. Whereas with PSX, you unlock a lot of things. There is low cost equity capital. Obviously, you have to pay interest on your loans, and those payments are quarterly. Here, there is no such thing as a payback. Yes, in the form of dividends, yes, there is. But then again, those dividends will go मैं into साहब your. सॉरी, अहमद साहब, मैं सॉरी आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। कुछ रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा सा उर्दू में भी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं, ये हमें पार्टिसिपेंट कह रहे हैं। थैंक यू। ओके ओके ओके, सॉरी। अच्छा, मेरा मकसद बेसिकली उर्दू में ही बोलना था। मैं थोड़ा सा, आई बिलीव अंग्रेजी ज़्यादा हो गई, तो चले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लो कॉस्ट इक्विटी कैपिटल एज कंपेयर टू डेट। जब आप डेट लेते हैं तो आप यानी कि किसी से उधार ले रहे हैं। अब उधार लेके बिजनेस चलाने से बेहतर ये है कि आप इक्विटी अपने लिए कैपिटल रेज करें, थोड़ी शराकतदारी कर दें, थोड़े शेयर्स इशू कर दें, और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ऑब्वियसली जब आपके साथ कोई कंपनी शेयर होल्डिंग के लोगों को में आप शेयर्स बांटेंगे तो उनको आपने कुछ ना कुछ तो अपने प्रॉफिट्स में से देना होगा। बट आई स्टिल फील कि वो डिविडेंड शेयर करना विद शेयर होल्डर्स इज अ मच बेटर थिंग देन टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक, और वो भी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के ऊपर। स्पेशली फॉर एसएमईज, हमेशा जो है आपको जो भी जिस रेट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हायर ही होगा एज कम्पेयर टू द मार्केट, बिकॉज इट्स अ रिस्कियर प्रोडक्ट। तो उसको हम यहाँ पे इसीलिए हम जो है उसको केटर करते हैं कि जी हमारे पास वाइडर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है, आप हमारे पास आइए, हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, हमारे पास कंपनी लिस्ट कराएं अपने इन्वेस्टर्स को। हम लोग आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म देते हैं कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें आपकी कंपनी में। प्राइवेट इक्विटी में भी आप यही करते हैं, आप वीसीज के पास जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस,
प्राइवेट इक्विटी फर्म से पास जाते हैं, मगर उनकी इतनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कोई एज सच एग्जिट का कोई रूट नहीं होता है उनके पास। फेयर मार्केट वैल्यूएशन आपको हम दिला के देते हैं। जाहिर बात है, मैंने अभी मल्टीपल्स ऊपर एक्सप्लेन किए थे आपको क्या है। मल्टीपल्स बेसिकली होते हैं प्राइस टू अर्निंग, यानी कि इट्स बेसिकली अ प्रिडिक्टिव काइंड ऑफ अ रेशो, जिसके अंदर लोग ये सोचते हैं कि जी अच्छा ये शेयर है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, ये शेयर इस वैल्यूएशन के ऊपर अच्छा लग रहा है, तो उसमें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रांड विजिबिलिटी की एनहांसमेंट हो जाती है ऑब्वियसली। व्हेन यू आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, तो आपका जो लोगो, जो टिकर होता है ना, वो पूरी दुनिया देख रही होती है। वो ब्लूमबर्ग पे भी चल रहा होगा, वो रिफिनिटिव पे भी होगा, वो एलएसई में भी देखा जा रहा होगा, वो पीएसएक्स पे भी देख रहा होगा, वो इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे होंगे। तो वो जो विजिबिलिटी हम आपको देते हैं, जो मिलती है आपको रादर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराने से, वो कहीं और से नहीं मिल सकती है। यानी कि अगर आप प्राइवेट फर्म होंगे तो मे भी आपको 1,000 लोग जानते होंगे, 2,000 लोग जानते होंगे, 10,000 लोग जानते होंगे। यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी मिलियंस को हो जाती है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस ऑब्वियसली इट्स अब हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कर रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि गवर्नेंस कितनी जरूरी होती है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। लोग अक्सर इसको सोचते हैं कि जी ये बर्डन है, मगर ये बर्डन नहीं होता है एक्चुअली। इट इज, मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब इट्स अ गाइडिंग लाइट फॉर कंपनीज। कि आपका अगर बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा, अच्छा बोर्ड बैठा हुआ होगा, तो वो आपकी कंपनी के लिए बेहतरी ही सोच रहा होगा। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जाहिर बात है आपकी डाइल्यूशन कम हो जाएगी, डेट टू इक्विटी रेशो आपका नीचे आ जाएगा, डेट के अंदर कमी आएगी, आप वहां से कर सकेंगे अपने आप को कैपिटल, मोर कैपिटल इंटेंसिव कर सकेंगे। बिजनेसेस को क्या चाहिए होता है? या तो एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। दोनों चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी फॉर द फाउंडर्स, ये बहुत जरूरी है। ये एग्जिट मैकेनिज्म होता है कि जब आपने कंपनी बनाई, एक बिजनेस को लिस्ट कराया, कहते हैं जी, अब आपने बोला कि यार ठीक है, आई हैव डन माय बिट, आई हैव गिवन इट माय ऑल, मेरा ये बिजनेस बिल्कुल स्टैब्लिश हो चुका है, कंपनी अच्छी चल रही है, अब मुझे एग्जिट चाहिए, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। तो वो आप अपने शेयर जो हैं, वो आप शेयर बाजार, मतलब कैपिटल मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशन भी ले सकता है, कोई और स्पॉन्सर भी ले सकता है। तो इट्स इजी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, और आपको आपकी अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन मिल जाएगी। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो थे कुछ बेनिफिट्स। अब हम आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स बताएंगे। रिकरिंग एक्सेस टू कैपिटल, एक दफा जब आप कैपिटल मार्केट्स एंटर हो जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर प्लेस। आपके पास कैपिटल मार्केट्स ही होंगी जिनसे आप रेज कर सकेंगे। कभी आपने राइट शेयर्स इशू कर दिए, कभी आपने एक सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग कर दी, कभी आपने अदर देन राइट इशू कर दिया। अच्छा, उसमें फायदा एक चीज और भी होती है कि जब आप बैंक के पास जाएंगे, तो अपने शेयर्स जो होंगे आपकी कंपनी के, वो भी प्लेज करा के रख सकते हैं उनके पास और लोन ले सकते हैं। मतलब अभी तो लेट्स से कि कोई, अभी कोई प्राइवेट बिजनेस है, वो कोलैटरल में क्या रखता है? वो अपना ऑफिस गिरवी रख देगा, अपना घर रख देगा, अपने पर्सनल एसेट रख देगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप लिस्ट होंगे, तो आपका जो शेयर है वो इतना लिक्विड एसेट होगा कि वो आप बैंक के पास रखवा के लोन ले सकते हैं। फेयर वैल्यूएशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रांड इक्विटी एंड क्रेडिबिलिटी, ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इंटरनेशनल इन्वेस्टर एक्सेस, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ सारे पाकिस्तानी आपकी कंपनी, अगर इन्वेस्टर होते हैं जो कि आईपीओ के अंदर। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी होती है। एक प्रॉपर बोर्ड होगा आपका जो कि बैठेगा, 7 का बोर्ड होगा या 10 का बोर्ड होगा या 11 का बोर्ड होगा। उस कॉस्ट को आप ना देखें, आप ये देखें कि वो बोर्ड आपके लिए व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल, वो आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है और किस तरह गाइड कर रहा है आपको। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग बोर्ड होगा, जितना स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अच्छा, उसमें होता ये है बेसिकली कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उन्हीं के पास रहता है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स विल रिमेन विद द स्पॉन्सर्स एंड द फाउंडर्स। जब उन्होंने एग्जिट करना होगा, तो वो एक अलग एक अलग बात है, एक अलग कहानी है, अलग अलग स्टोरी है। बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, उनके पास ही मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रहेगी। बोर्ड के अंदर कुछ 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, 1/3 या उससे हायर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द पीपल यू हायर ऑन द बोर्ड। और उसके अलावा आपका कुछ कमिटीज होती हैं जो कि आपने बनानी होती हैं। देर ऑल दे ऑल हेल्प यू आउट इन 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 कीपिंग अ टैब ऑन योर बिजनेस, in guiding you in the right direction where the company should be heading. आगे चले।
इसमें एक चीज जो मैं बताना आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो आपको पता होगा नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब आप लिस्ट कराते हैं कंपनी, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है साजगार इंजीनियरिंग हमारे पास, ठीक है। वो आई थी, उसने अपना एक शेयर लिस्ट कराया होगा 40 या 50 रुपए में। आज उसके शेयर की वैल्यू 1500 1800 रुपए चल रही है। तो जो स्पॉन्सर्स के पास शेयर है, फॉर एग्जाम्पल, वो 1 मिलियन शेयर होंगे। तो 1 मिलियन शेयर जब उसकी फेस वैल्यू, जब आप प्राइवेट या पब्लिक अनलिस्टेड अनलिस्टेड फोल्ड में होंगे, वो 10 रुपए होगी। वो 10 रुपए ही रहेगी, आपकी वर्थ 10 मिलियन ही रहेगी। मगर आपने लिस्ट कराया और ये शेयर आपका 100 रुपए हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नेटवर्थ है वो फ्रॉम 10 मिलियन टू 100 मिलियन हो गई, यानी कि 10 टाइम्स आपकी वैल्यू हो गई। See, the reason why people like Elon Musk and Mark Zuckerberg and Bill Gates and Jeff Bezos, they've listed their companies is to increase their net worth. आज उनके पास अगर पैसा नहीं है इन रियल टर्म, लेकिन लिक्विड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज हैं, और कितने कितने उन्होंने अभी भी कंपनीज खड़ी कर दी सिवाय सिर्फ यही करते हुए। बट एवरी स्टोरी हैज अ स्टार्ट, एंड फॉर एसएमई जेम बोर्ड इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू रेज कैपिटल, क्योंकि ये आपको प्रिपेयर कर देगा फॉर मूविंग ऑन टू द प्रीमियम बोर्ड विच इज द मेन बोर्ड। अच्छा, कुछ हमने ग्लोबल कंपैरिजन आपको बताएं। ये जेम बोर्ड हांगकांग, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबके ऊपर जेम बोर्ड अवेलेबल है। ऑब्वियसली बिकॉज कैपिटल मार्केट्स का काम खाली बड़ी कंपनियों को फैसिलिटेट करना नहीं है। कैपिटल मार्केट्स का काम है छोटी कंपनीज को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को भी स्केल करवाना, उनको कैपिटल दिलवाना, और उनको एक ऐसी जगह लेके जाना जहां से दे डोंट नीड टू लुक बैक। आई एम नॉट सेइंग कि हर कंपनी ही कामयाब होगी, बट यस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल सक्सीड। जो फॉलो करेगा गवर्नेंस को, जो फॉलो करेगा उस कैपिटल को अच्छी तरह यूटिलाइज करेगा, वही कंपनी जो है आपकी, वो बेसिकली जिसको बोलेंगे कि ग्रो करेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी कुछ लिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट करते हैं। इक्विटी सिक्योरिटीज में आपके शेयर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए। कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, इसमें आपके टीएफसीज हैं, सुकूक्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, वेरियस। अच्छा, गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए आपके, इसके अंदर हम सुकूक्स को आजकल ले जा रहा है। सुकूक्स आपने सुना गवर्नमेंट ऑप्शन करती है, वो भी पीएसएक्स के प्लेटफॉर्म से ही ऑप्शन कर रही है, वो बहुत अच्छे हैं। इसमें आप 5,000 से अपनी 5,000 की फेस वैल्यू होती है, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। सुकूक्स इशू कर रही है गवर्नमेंट, और बिलियंस एंड बिलियंस, अब तक मेरे ख्याल में 6 ट्रिलियन के करीब हमारे प्लेटफॉर्म से रेज कर चुकी है गवर्नमेंट। ईटीएफ्स होते हैं। ईटीएफ बेसिकली इज अ फंड विच इज, जिसमें पूल, एक पूल होता है पूरा कंपनीज का, और उसके अंदर वो फिर ट्रेड होते हैं। ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहलाते हैं वो। उसमें कुछ एक बास्केट होगी, इसमें 10-12 कंपनीज होंगी, बैंकिंग की हो सकती हैं या वेरियस होंगी, वेरियस वेटेजेस दिए हुए होंगे उसके अंदर कंपनीज को, और वो फिर वो जो है ना, पूरे का पूरा फंड एक सॉर्ट ऑफ बास्केट वो ट्रेड हो रही होती है। इट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज वेल। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत महंगे नहीं होते हैं, और अच्छा रिटर्न भी इसके ऊपर मिल सकता है, क्योंकि अच्छे कंपनीज फंड्स को जो है वो कंप्राइज कर रही होती हैं। ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स ये ट्रेड नहीं होते हैं, देर जस्ट देयर, जिसमें आपने सुना होगा ये नाफा वगैरह के फंड्स वगैरह, ये आके हमारे पास लिस्ट होते हैं। बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ इज इक्विटी सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगा, बट व्हाट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इज आर इक्विटी सिक्योरिटीज पोर्शन। प्लीज मूव ऑन। अच्छा, ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड, इसमें आपके पास लिस्ट कराने के दो तरीकेकार हो। एक तरीकेकार होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसको हम आईएम बोलते हैं, और दूसरा तरीकेकार होता है प्रोस्पेक्टस। इन दोनों में क्या बेसिक फर्क है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है, वो आप उस वक्त निकालते हैं जब आपकी कंपनी को बेसिकली
फंडिंग चाहिए होती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है, यानी कि दो रूट्स हैं हमारे पास। वो होता है लिमिटेड टू accredited इन्वेस्टर्स विच इंक्लूड्स हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, easier टू मेक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली आपका, जब आप पब्लिक का रूट लेंगे। अच्छी बात यह है कि पहले हमारे पास लिमिटेशन थी जैम बोर्ड पे आने के लिए कि नहीं जी, सिर्फ हम, क्योंकि ये रिस्कियर होता है बिजनेस, तो उसमें सिर्फ हम accredited इन्वेस्टर्स को ही अलाउ करते थे। अब हमने फिर ये नीड फील की कि काफ़ी क्वार्टर्स से हमें आया कि नहीं जी, आप इसमें पब्लिक को भी अलाउ करें। तो हमने इसमें पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, जो कि हमारी मेन रेगुलेशन है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017, उसके अंदर भी ऐड कर दिया है। तो अ जेम बोर्ड कंपनी एन एसएमई कैन नाउ लिस्ट आइदर पब्लिकली और थ्रू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। लिस्टिंग स्टेटस बराबर ही होगा दोनों का। लिस्टिंग का स्टेटस भी मिल जाएगा उन लोगों को, कैपिटल भी रेज हो जाएगा, मगर ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रूट यूज करना चाहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसके लिए लिमिटेड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल होता है। उसके अंदर कुछ छूट होती है, जैसे ऑडिट कमेटी हो गई, फीमेल डायरेक्टर हो गई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 2 साल के लिए छूट होती है। लेकिन अगर आप पब्लिक के रूट से आएंगे तो जाहिर ही बात है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, इसमें एलिजिबल इन्वेस्टर्स एंड जनरल पब्लिक कैन पार्टिसिपेट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इनिशियल लिस्टिंग फी को हमने सिर्फ 50,000 रुपये रखा हुआ है, यानी कि बहुत ही कम फीस के ऊपर, क्योंकि ये जेम बोर्ड है तो हमने अपनी फीस को अकॉर्डिंगली बहुत कम रखा हुआ है। हमारी एनुअल लिस्टिंग फी होती है वो भी बहुत कम है, मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख जाती है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कैपिटल यू हैव रेज्ड। और कौन आपको हेल्प आउट करेगा इसके अंदर? पीएसएक्स हैंड होल्डिंग करता ही है। स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो कि हमारे ब्रोकर्स होते हैं, वो हैं, और एडवाइजर आपको हेल्प होल्डिंग के लिए। मूविंग ऑन। कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने बात किया स्ट्रक्चर की, कॉर्पोरेटाइजेशन की। जाहिर बात है, क्योंकि अब आप लिस्टिंग के लिए आ रहे होंगे तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा। तो कंपनी हैज टू बी पब्लिक एंटिटी, यानी कि आप पब्लिक अनलिस्टेड फोल्ड में होने चाहिए। और एंट्री पॉइंट जो है हमारा, वो 2.5 करोड़ से शुरू होता है। यानी कि यू कैन रेज 25 मिलियन कैपिटल मिनिमम। आप मतलब 2.5 करोड़ रुपए से लेके प्रॉब्ली विल कैप इट एट 25 करोड़। बट 2.5 करोड़ से लेके आप 25 करोड़ रुपए तक रेज कर सकेंगे अपने बिजनेसेस के लिए, विच आई थिंक इज अ डिसेंट अमाउंट कंसिडरिंग दैट दीज आर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। हो सकता है कि हम इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाएं, बट फिलहाल हमारे पास एंट्री पॉइंट जो है वो 25 मिलियन का है। वो हम नहीं टच करेंगे, विच इज द फ्लोर, कि अगर आपने 25 मिलियन भी रेज करना है तो आप हमारे पास आके लिस्ट करा सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन आपको 25 मिलियन में क्या क्या मिल रहा है। जो मैंने ऊपर जितने भी बेनिफिट्स आपको एक्सप्लेन किए, वो 25 मिलियन कैपिटल रेज करके आपको मिल जाएंगे सारे बेनिफिट्स। ऑल्दो इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल कि आप थोड़ा ज्यादा कैपिटल रेज करें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, बट एक मिनिमम अमाउंट होती है जो कि हमने बेसिकली कंपनीज के लिए रखी हुई है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए आपके, 2 साल के, QCR रेटेड फर्म से। इट मे बी एन ए रेटेड फर्म, इट मे बी अ बी रेटेड फर्म, बट QCR रेटेड होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड जो होते हैं आपके, यानी कि जाहिर बात है 10 होने चाहिए थ्रू, अगर आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू आ रहे हैं, 50 इफ यू आर कमिंग थ्रू प्रोस्पेक्टस। मेन बोर्ड के लिए थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर मिनिमम 500 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। बट 10 और 50 एक ऐसा फिगर है जो कि बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है। अच्छा, मिनिमम डायरेक्टर्स ऑफ नंबर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी 7, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो छूट है वो आपकी ऑडिट कमेटी वगैरह के अंदर है, आपकी फीमेल डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में है, जब आप IM के थ्रू आ रहे होंगे। अदर देन दैट, जो रिक्वायरमेंट है 7 मिनिमम डायरेक्टर की पब्लिक लिस्टेड होने के लिए, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, ऑब्वियसली विदाउट अ वेबसाइट, क्योंकि लोग आते हैं आपकी कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे, दे गोइंग टू सी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। और जो इशू साइज है, विच इज एक्चुअली जो आप पब्लिक को देंगे, वो हमने मिनिमम रखा हुआ है, वो है 10%। यानी कि आप 10% दे के 25 मिलियन रेज करके अपना क्या कहते हैं, हमारे पास लिस्ट करा सकते हैं इजीली।
और 90% शेयर होल्डिंग आपके पास रहेगी। और प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये बात एक बहुत एक जो बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है वो भी आ सकती है, प्रोवाइडेड कि उसकी थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, बट वी ऑल्सो एंटरटेन लॉस मेकिंग कंपनीज। क्योंकि देखिए, हम तो यही कहते हैं, हमारा जो मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली अ बायर बीवेयर मॉडल। कि भाई डिस्क्लोजर होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, पूरा डॉक्यूमेंट होता है, हर चीज आपकी कंपनी की दी हुई होती है, इन्वेस्टर्स आपके लिए अरेंज कर रहे होते हैं। सो इट्स बेसिकली अ बायर बीवेयर मॉडल। नो डाउट अप्रूवल पीएसएक्स दे रहा होता है, और अगर पब्लिक के थ्रू आ रहे होंगे तो एसईसीपी भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन इट्स ऑल डिस्क्लोजर बेस्ड। तो इफ यू फील कि अगर आज आपकी कंपनी लॉसेस में है, लेकिन देयर इज अ वायबल बिजनेस प्लान एंड यू कैन रिवाइव द कंपनी एंड यू कैन मेक प्रॉफिट्स विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ हमारे पास आ सकते हैं। बात हो रही थी प्रोस्पेक्टस की और जनरल कंडीशन फॉर पब्लिक ऑफरिंग की ना। उसमें बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होती है, क्योंकि कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड होती है। पब्लिक अनलिस्टेड में आपको जो मैक्सिमम अंडर कंपनीज एक्ट जो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 3 चाहिए होते हैं। वो वंस यू आर लिस्टेड तो फिर वो 7 करने होते हैं। वो बोर्ड आपकी जो है ना, मैं आगे जाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसके लिए वर्क फेजेस होते हैं। ठीक है, ईश्वर हैज अ प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वो भी मैंने बोला कि हम लॉस मेकिंग को भी करते हैं। अ, एक चीज जो हम खास तौर पे देखते हैं वो ये है कि किसी स्पॉन्सर का, प्रोमोटर का, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का ओवर ड्यू या डिफॉल्ट ना हो, appearing in the ECIB report. अच्छा, not less than 51% of the shares are held by the same persons for at least 2 preceding financial year। ये अगर हाइब्रिड इशू होता है तो उसके अंदर कवर हो जाता है। बहरहाल ये एक थोड़ा टेक्निकल चीज है, आई कैन एक्सप्लेन इट लेटर टू यू इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन। और सिक्योरिटीज शैल बी इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म ओनली। ये एक ऐसी चीज है जो कि आप सारी कंपनीज के लिए, वेदर प्राइवेट लिमिटेड है वेदर पब्लिक अनलिस्टेड है, उनके लिए हो गया है। एसईसीपी ने सर्कुलर निकाला था कि सबको अपने शेयर जो है सीडीसी में डीमैट फॉर्म, जिसको हम डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवाने होंगे। The issuer does not have the profitable track record for two from its core business as a company limited liability record। अच्छा, दो चीजें हम लोगों ने इसके अंदर की हैं, अभी नई ऐड की है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस, दैट इज अ लीगल फ्रेमवर्क जिसके अंदर कंपनीज काम कर रही होती हैं। पहले क्या था कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उसमें, या पब्लिक अनलिस्टेड हो, उसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा हो प्रॉफिटेबल। उसके बाद ये है कि उसके लिए फिर पार्टनरशिप के लिए बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास लिस्ट कराना। अब हमने क्या किया है कि हमने जो भी पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी है, हमने कहा है जी ठीक है, आप भी आ सकते हैं इसके अंदर, प्रोवाइडेड कि आपके पिछले 2 साल के ऑडिट अकाउंट्स बन जाए और आपने आपको डायरेक्टली पब्लिक अनलिस्टेड कर ले। तो हमें अब हमने वो बैरियर भी खत्म कर दिया जहां पे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप्स डायरेक्टली लिस्टिंग के लिए नहीं आ सकती थी। सो दिस इज अ ह्यूज चेंज दैट वी हैव मेड। इनफैक्ट अगर कोई अपना बिजनेस कार्व आउट भी करना चाह रहा है, लेट से कि मेरा एक सेगमेंट है जो बड़ा अच्छा कमा रहा है और मैं चाहता हूँ कि यार उसके लिए अलग से कैपिटल रेज करूँ, तो मैं अलग से उसकी कंपनी बना के वो भी उसको उसके लिए भी आईपीओ कर सकता हूँ। काफी कंपनीज ने वर्ल्ड ओवर ये किया है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस कराई है कि इफ यू वांट टू कार्व आउट अ सेगमेंट एंड कम फॉर लिस्टिंग, you can do that। if you're a partnership and you want to come directly for a listing, आप आना चाह रहे हो तो पब्लिक अनलिस्टेड में अपने आप को कन्वर्ट कराओ और आप आ जाओ हमारे पास लिस्टिंग के लिए। सो ये एक गेम चेंजर है हमारे पास। तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट इजियर फॉर द कंपनीज टू कम एंड लिस्ट एंड रेज कैपिटल, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। अहमद साहब, वो एक पॉइंट है उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। वो क्वेश्चन आया है कि नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ इश्योर आर हेल्ड विद द सेम पर्सन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये अच्छा, चौथा पॉइंट, इसमें नॉट लेस देन। जी। होता ही है, इसमें होता ये है कि कभी कभार शेयर होल्डिंग अपनी हैंड्स चेंज कर लेती है। तो उसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि अगर आप कंपनी के स्पॉन्सर हैं या कोई भी है तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल तक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उस कंपनी। वो आई मेक माई सेल्फ क्लियर? आप लोग
समझ आई बात? Yes, he is ओके, acknowledged it. ग्रेट, थैंक यू। वैसे ये भी, इसकी भी रिलैक्सेशन मिल जाती है अगर आप हाइब्रिड इशू कर रहे होते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं। मैंने अभी तक आपसे सिर्फ कैपिटल रेजिंग की बात की है। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक। उसमें होता यह है कि पैसे कंपनी में नहीं जाएंगे, जो भी शेयर होल्डर ऑफलोड कर रहा होगा उसकी जेब में पैसे जाते हैं। तो वो भी, अगर किसी को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, आपको टू प्रॉन्ग अप्रोच मिल रही है, या तो आप कैपिटल रेज कर ले, या आप अपने लिए खुद लिक्विडिटी ले ले, साथ में लिस्टिंग स्टेटस भी अक्वायर कर ले, तो ये भी होता है हमारे यहाँ। और चार रीजंस होते हैं बेसिकली जिसकी वजह से आप कैपिटल रेज करते हैं। मैंने आपको दो तो बताए थे शुरू में। एक है आपका फॉर एक्सपेंशन, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल, थर्ड इज अगर आपने कोई लैंड वगैरह एक्वायर करना हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, और फोर्थ इज आपका डेट रिटायरमेंट। अगर आपको डेट बर्डन ज़्यादा हो गया है तो उसको भी आप रिटायर कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स बैक मेरे पास दो कंपनीज आई थी जिनका एग्जैक्टली यही रीज़न था कि उन्होंने अपना डेट रिटायर करना था। क्योंकि आपको पता है जो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट 2 साल 2.5 साल पहले थी, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट थी, तो वो ऑब्वियसली उनको बर्डन सम लग रहा था। तो जल्दी उनको थी पैसे लेने की। हमारे पास भी आए थे, बट दे देन लेफ्ट एंड टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। उसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि ये बैंक लोन तो सर बड़ा भारी पड़ा है हमें, तो इससे बेहतर है कि हम इसको रिटायर ही कर देते हैं। तो दोनों कंपनीज ने हमसे कैपिटल रेज किया और अपना डेट रिटायर किया, ताकि थोड़ा सा उनको भी रिलीफ मिले। एनीवेज, मूविंग ऑन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये वर्क फेजेस एंड की आईपीओ एक्टिविटीज होती हैं। एक तो देखें, जब भी आपने लिस्ट कराना है तो आपको एक रोड मैप चाहिए होगा। जाहिर बात है कि भाई कैसे आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराएंगे। और फिर ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग होती है इसके अंदर। अच्छा, रोड मैप के अंदर ऑब्वियसली सबसे पहली चीज जो आएगी वो ये आएगी कि उससे पहले आपने कुछ काम करने होंगे। जैसे आप कॉर्पोरेटाइज होंगे, आपने अपने आप को पब्लिक अनलिस्टेड करवाना होगा। इवन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फोल्ड में है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में है, तब भी आप अपना एक बोर्ड बना सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। तो जब आपने ये दो चार काम कर लिए, जैसे पब्लिक अनलिस्टेड करवा दी, एक बोर्ड के अंदर 5 6 7 लोग बिठा दिए, फाइनेंशियल्स आपके रेडी हैं, तो आप समझ लें आपका 80% काम हो गया। ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग फॉर आईपीओ, नाउ दैट इज द ट्रिकी पार्ट। यहाँ पे आपका बेसिकली यू विल नीड सम हैंड होल्डिंग एंड यू विल नीड टू हायर बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और अ बैंक और अ ट्रैक होल्डर जो कि आपको हेल्प आउट कर सके इन स्ट्रक्चरिंग योर ट्रांजैक्शन। कि जी आपने कितने मल्टीपल के ऊपर पैसा उठाना है, आपने कितने शेयर्स देने हैं एग्जैक्टली पब्लिक को, और इतने शेयर्स देके इतना पैसा उठ सकता है इसके अंदर। तो ये एक वो फेज होता है जिधर आपको हेल्प चाहिए होती है। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मींस ऑफ फाइनेंसिंग, वो तो ऑब्वियसली एक अलग चीज है। अच्छा, फाइनेंशियल मॉडल वैल्यूएशन जो मैं बता चुका हूँ, प्राइसिंग, ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हम लोगों ने इसको एज इस बेसिस पे नहीं किया है। क्योंकि देखें, टेक इंडस्ट्री भी है, बाकी इंडस्ट्रीज भी हैं, नॉट एवरी बिजनेस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। मगर कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जिसके अंदर आपको फायदा हो जाता है, या आपको नजर आ होता है कि यार मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, या कुछ आप ग्रोथ दिखा रहे होते हो। तो हमने बेसिकली अलाउ किया हुआ है अपने कंपनीज को टू गिव देयर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर 5 इयर्स, कि आके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करके अपना वो करें, इसके अंदर क्या कहते हैं, आईएम के अंदर दे। और अगर इन्वेस्टर्स को वो चीज़ समझ आती है तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर। तो बेसिकली ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा ना, डिस्क्लोजर बेस्ड है ये चीज़। सो व्हेन इट्स डिस्क्लोजर बेस्ड, तो आप ऑब्वियसली देखें बहुत ज़्यादा हाई ना वैल्यूएशन करें, मगर ऐसी वैल्यूएशन करें विच विच एक्चुअली कोइंसाइड्स विद योर बिजनेस प्लान्स। तो एक तो ये चीज हो गई है। जेम बोर्ड पे इस वक्त जी हमारे पास 7 कंपनीज हैं, जिसमें से 2 मैच्योर हो चुकी हैं और अब वो मेन बोर्ड पे जा चुकी हैं। 5 कंपनीज हैं। As I explained earlier, there is a serious lack of awareness, and there are a few companies that we are working on these days क्योंकि जेम बोर्ड पे आना चाह रही हैं। बट आर मेन एम being a PSX, a frontline regulator and a provider of the capital market platform, is to raise awareness. Obviously हम आपको बताएंगे
तो आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। अनलेस अंटिल यू 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 इफ यू डोंट नो अबाउट द जेम बोर्ड, देन हाउ आर यू गोइंग टू लिस्ट ऑन इट? तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली दीज आर थिंग्स दैट यू हर्ड, you're hearing for maybe the first time. A lot of you will be hearing for the first time. So that is one thing. अच्छा, उसके बाद ये आपके साथ एक 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 क्या कहते हैं, आप एक रोड मैप हमने ये दिया हुआ है, वर्क फेजेस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस आपने ड्राफ्ट करना होगा, वो भी इसमें भी हेल्प आउट करेगा आपको, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड प्रिपेयरिंग। जी, मिनिमम मैंने लिमिट एक्सप्लेन की थी कि 25 मिलियन रुपीस की इसके अंदर एंट्री है, कि यू कैन रेज 25 मिलियन फ्लोर, यानी कि 2.5 करोड़ से लेके, अब अभी फिलहाल तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी हुई फॉर द जैम बोर्ड, बट प्रोबेबली जैम बोर्ड के ऊपर एक लिमिट आ जाएगी जो कि 2.5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की होगी। एंड फॉर 25 to 50 मिलियन एंड अबव हमारा एक और बोर्ड है विच इज द मेन बोर्ड, जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑडिट अकाउंट्स वगैरह, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं पहले एक्सप्लेन नहीं कर चुका हूँ, तो हम प्रोसीड करेंगे। नहीं, जैम बोर्ड के लिए सर 10% है, जैसे मैंने पहले बताया। 25% जो है वो है मेन बोर्ड के लिए, वो भी उन कंपनीज के लिए। देखिए, मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें मैंने दी हुई है आगे सारी चीजें। अच्छा, हम ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, रोल ऑफ लीड मैनेजर क्या होगा, या पीएसएक्स ब्रोकर या बैंक, और ये जो भी आपका एडवाइजर होगा वो आपकी ड्यू डिलिजेंस भी करेगा, लीगल फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस या आईएम तैयार करेगा, वैल्यूएशन और प्राइसिंग में आपकी हेल्प करेगा। ये कंट्रोल बाय द वे कंपनीज यानी कि इशूअर और कंसल्टेंट टू द इशू या लीड मैनेजर के पास होता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स किस प्राइस पे ऑफर करेंगे। बेसिकली दैट इज द वैल्यूएशन विच इज देयर। ठीक है ना, जो कि आप खुद डिसाइड करते हैं, डिसीजन इज योर्स। वी मे क्वेश्चन ऑन अ फ्यू थिंग्स, बट देन अगेन यू डिसाइड ऑन व्हाट टू इशू द शेयर्स। इसमें रेगुलेटर्स का कोई काम नहीं होता है। रोड शो में आपके रोड शोज भी करवाते हैं ये लोग आपके, मतलब आपने अब ऑब्वियसली अपना करना है तो आपने अपने शेयर्स भी सेल करने होंगे। पीएसएक्स फाइलिंग के अंदर हेल्प करता है, पोस्ट लिस्टिंग ऑनगोइंग जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर भी लीड मैनेजर हेल्प करता है। फिर एक्चुअली पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंस के लिए पीएसएक्स भी हैंड होल्ड करता है। थ्रू आउट दिस प्रोसेस हम लोग कंपनीज का हैंड होल्डिंग कर रहे होते हैं। एंड इसके अंदर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हम आपके लिए सीटीआईज भी अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर। यू नो, इफ यू शो योर इंटरेस्ट, देन ऑब्वियसली वी बीइंग रेगुलेटर्स आल्सो टेक पार्ट, और इसका पार्ट होते हैं हम लोग के अपने सीटीआईज के साथ आपकी मुलाकात करवाएं, कनेक्शन करवाएं, उसके बाद उसको मॉनिटर करें। इनफैक्ट वी आर डूइंग इट फॉर अ फ्यू कंपनीज। तो एक तो ये है, तो बेसिकली यू गॉट जी जी, मैं आई एम कमिंग टू दैट। उस पे भी हम लोग बिल्कुल करेंगे, एंड ऑब्वियसली वन बाय वन करेंगे। इट्स अ ग्रेट आइडिया, हम क्या भी जाएंगे, आई नो अदर प्लेसेस एज वेल। बट बात ये है मैम कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके वी आर डूइंग इट। इट्स वी नो इट्स एन आर्डुअस प्रोसेस, गोइंग टू बी अ cumbersome process and a time taking process, but obviously we are trying our best to, you know, sort of spread the knowledge about our gem board and the main board as well, or IPOs and what they bring to the table. So inshallah we'll definitely do it. Next slide please. दो मेथड्स होते हैं हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग के लिए, एक फिक्स प्राइस कहलाता है, एक बुक बिल्डिंग कहलाता है। फिक्स प्राइस मेथड ये होता है कि आपका, लेट से फॉर एग्जांपल, पार वैल्यू, एवरीवन अंडरस्टैंड्स पार वैल्यू राइट, नोशनल फेस वैल्यू क्या होती है शेयर की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जो आपकी पार वैल्यू है, 10 रुपए हो सकती है, 1 रुपए हो सकती है, 2 रुपए हो सकती है, 5 रुपए हो सकती है, वट, उसके ऊपर आप एक प्रीमियम रखते हैं कि भाई मुझे 5 रुपए, 10 रुपए के शेयर के ऊपर मुझे 5 रुपए चाहिए। तो आपने कहा जी मेरा प्रीमियम जो है टोटल मिला के 5 रुपए प्रीमियम के साथ मेरी शेयर प्राइस हो गई है 15 रुपए, तो 15 रुपए में मैं शेयर इशू करूंगा आप पब्लिक को। तो वो बेसिकली, और उसमें लेकिन आगे पीछे नहीं हो सकता है, वो सीधी कंपनी जाती है आईपीओ के अंदर, आप जनरल पब्लिक को, इंस्टीट्यूशन को, सबको एक साथ ऑफर करेंगे उसके अंदर। और हमारा प्लेटफॉर्म है ईआईपीओ प्लेटफॉर्म, जो आपको उसमें हेल्प आउट करेगा। उसमें एक फिक्स प्रीमियम ले रहे होते हैं हम।
तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स प्राइस मेथड। दूसरा मेथड है बुक बिल्डिंग का। बुक बिल्डिंग इज बेसिकली एन ऑक्शन। उसमें होता ये है कि आप एक फ्लोर प्राइस सेट करते हैं, यार 10 रुपए का मेरा शेयर है, 5 रुपए में प्रीमियम लूंगा, लेकिन ये मेरी फ्लोर प्राइस होगी। और उसमें होता है एक प्राइस बैंड। प्राइस बैंड पहले था 40% के, 15 रुपए से वो 6 रुपए ऊपर जा सकता है। प्राइस बैंड 40% था, अब वो प्राइस बैंड भी पीएसएक्स ने हटा दिया है, एसईसी पीएसएक्स ने। नाउ यू कैन कीप 100% प्राइस बैंड। उसमें होगा ये कि आपके जो शेयर्स होंगे वो पहले ऑफर किए जाएंगे टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि 75% होंगे फॉर बुक बिल्डिंग। एंड दे विल बिड फॉर योर शेयर्स। उसका एक ऑक्शन होगा, हमारा एक पूरा बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑक्शन होता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा उनको। और उसके बाद फिर 25% दिए जाएंगे पब्लिक को। अच्छा, उस ऑक्शन के अंदर आपकी एक 15 रुपए की फ्लोर प्राइस होगी, फ्लोर से नीचे नहीं जा सकता है वो शेयर, ठीक है, ऊपर ही जा सकता है। तो अलर्ट से आप कहते हैं जी 40% का बैंड आपने डिसाइड किया कि जी वी कैन गो अप टू 21 रुपीज। तो वो जी जी बिल्कुल। तो वो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, वैसे मैम ये हमारा, आप इंशाल्लाह वी गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। इसमें हम केस स्टडी भी लेके आएंगे आपके लिए, एंड देन इफ गाज़ैन अलाउज अस एंड इज काइंड इनफ कि वो हमें दोबारा टाइम दे, या आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो विल डेफिनेटली डू अनदर सेशन ऑन ऑन ऑल दीज थिंग्स। और आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। Yep. तो बेसिकली ऑक्शन होगा आपके शेयर का, फिर एक स्ट्राइक प्राइस निकलेगी। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिर जनरल पब्लिक लेगा। लेट्स से 15 रुपए का शेयर 18 रुपए पर उन्होंने कहा जी सब्सक्राइब किया, विच इज एक्चुअली 20% अबव योर जो फ्लोर आपने सेट किया था। एसएलएन के अंदर किया हुआ सर्विस लॉन्ग मार्च वगैरह में सब ने अपना हाईएस्ट बैंड टच किया, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत था। एक इंटरेस्टिंग फिगर है कि वो आई थी कंपनी तकरीबन 5.5 बिलियन रेज करने के लिए बुक बिल्डिंग, और जो इंटरेस्ट आया है वो तकरीबन 84 बिलियन का था। 84 बिलियन का इंटरेस्ट आया उस कंपनी के अंदर। यानी कि जो डेप्थ है इस वक्त मार्केट की वो ये है कि अगर कोई कंपनी आती है लिक्विडिटी करने, 84 बिलियन इज अराउंड $250 million, कंसिडरिंग दैट दिस इज पाकिस्तान। आई मीन दैट वाज अ ग्रेट मतलब आउटिंग फॉर देम। एनीवेज, सो एज आई वाज सेइंग बुक बिल्डिंग, तो ये है बेसिकली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपका जो जनरल पब्लिक होगी वो बेसिकली आपका वो करेगी आईपीओ, जो रिमेनिंग 25% होंगे। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यू प्राइस योर शेयर। पोस्ट लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन द स्पॉन्सर शेयर होल्डर, विच इज एक्चुअली क्यों होती है ये भी बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि देखिए, जब आप पब्लिक से पैसा सॉलिसिट कर रहे होते हैं या किसी से भी, तो आपके ऊपर ऑब्वियसली कोई जिम्मेदारी बनती है, और एग्जिट हम ऐसे नहीं दे सकते इतने आराम से किसी को भी। तो जो आपकी इंटायर शेयर होल्डिंग होती है, लेट से आपने 90%, 10% ऑफलोड किया, 90% अपने पास रखा, तो नो 90% आपने 12 महीने तक रखना है अपने पास। लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फॉर नॉर्मल कंपनीज, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, ये आपका जो होता है 90% ये लॉक रहेगा फॉर 12 मंथ्स। और उस 12 मंथ्स के बाद यू विल बी ओपन नेक इन द नेक्स्ट 3 ईयर, आपको अप टू 25% कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपनी तकरीबन 60% 70% होल्डिंग जो है वो सेल ऑफ कर सकते हैं इन द मार्केट। तो ये हो गया। मगर लॉस मेकिंग कंपनीज का थोड़ा डिफरेंट होता है। लॉस मेकिंग कंपनीज जो आएंगी वो, इन पे ये तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, उसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है कि फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, जब तक कि आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं कर दिया है, आप आपने अपनी 51% शेयर होल्डिंग रखनी है स्पॉन्सर्स में। ठीक है। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं? स्पॉन्सर्स बाय डेफिनेशन जिन्होंने सीड कैपिटल में पैसा लगाया होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी वो होती है। लेट से कि आपकी कंपनी को 3-4 साल हो गए बने हुए, ठीक है ना, शुरू के स्पॉन्सर्स हो गए, लेकिन आप बीच में किसी और प्राइवेट इक्विटी फर्म को भी, लेट से करंदाज को ले आए, करंदाज ने इन्वेस्ट कर दिया आपने अपनी आपकी कंपनी में, राइट। बट करंदाज जो है वो आपका स्पॉन्सर नहीं होगा, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। स्पॉन्सर वही होगा जिसने शुरू में पैसा लगाया है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। तो ये एक चीज है जो कि मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे आईपीओ प्रोसेस एंड टाइम फ्रेम है 14 वर्किंग डेज में हम लोग अप्रूवल देते हैं। अच्छा, ये
वर्किंग फेज स्टार्ट होता है वंस यू आर डन विद द प्रोस्पेक्टस। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो हम आपका प्रोस्पेक्टस अपलोड कर देंगे पब्लिक कमेंट्स। वो आईएम हो, प्रोस्पेक्टस हो, कोई भी चीज़ हो, पब्लिक कमेंट्स के लिए अपलोड कर दिया जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। उस पर कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स के आपने जवाब देने होंगे कंसल्टेंट टू द इशू के साथ मिलके, यानी कि लीड मैनेजर के साथ मिलके। उसके बाद हम लेते हैं 5 वर्किंग डेज, बोथ अस एंड एससीसीपी टेक 5 वर्किंग डेज फॉर बेसिकली रिव्यूइंग। और फिर हम उसके बाद आपके लीड मैनेजर को वापस वो अपने कमेंट्स के साथ भेज देते हैं। जो भी प्रोस्पेक्टस होता है 5 वर्किंग डेज में उनका टाइम होता है टू रिस्पॉन्ड टू अस। फिर उसके बाद जब उनका रिस्पॉन्स आ जाता है तो मेरे पास 2 वर्किंग डेज होते हैं टू अप्रूव द केस विच वी डू। और उसके बाद 2 वर्किंग डेज होते हैं एससीसीबी के पास टू अप्रूव। तो टोटल 14 वर्किंग डेज का एक टाइमलाइन है जो कि हम फॉलो करते हैं। टाइम टू मार्केट जो हमने रखा हुआ है फॉर दीज फॉर द इशू के, यानी कि जब से अपलोड होता है टू द मार्केट में लाने के लिए, दैट इज 29 वर्किंग डेज ऑल इन ऑल। तो ये एक काफी अच्छी और अनप्रेसिडेंटेड टाइमलाइन है जो कि हमने इस वक्त अपने आप को दी हुई है, विच इज एक्चुअली रियली टफ बिकॉज देयर हैज बीन एन ऑनस्लॉट ऑफ क्या कहते हैं आईपीओज। तो ये है इसके अंदर इशू। बहरहाल, मूविंग ऑन। मैंने जो आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, प्रोस्पेक्टस में आईएम में आप दोनों चीज़ों के अंदर, क्योंकि डिस्क्लोजर बेस्ड है, बायर बीवेयर मॉडल है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन आएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, प्रोसीड्स, यूज ऑफ प्रोसीड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्पॉन्सर्स एंड मैनेजमेंट, किस चीज़ के थ्रू जा रहे हैं, बुक बिल्डिंग के या फिक्स प्राइस के थ्रू, क्या मैकेनिज्म होगा, बिजनेस ओवरव्यू आएगा, मैनेजमेंट गवर्नेंस आएगा, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है आपके, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, बिकॉज यू नो this needs to be एक्चुअली डिस्क्लोजर्स होने चाहिए क्योंकि पब्लिक के पास जा रहे हैं आप लोग। तो ये एक एक चीज होती है जो हम रिक्वायर करते हैं, और अगर कम हमें लगते हैं डिस्क्लोजर्स तो हम वो ऐड कराते हैं डिस्क्लोजर्स उसके अंदर। ये एक बेसिक हुआ है। बाय द वे, आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन। जी, ट्रांजिशन प्रोसेस जो है वो एक इजी होता है माइग्रेशन के लिए। द मोमेंट कंपनी जो है, लेट से हमारी एक रिक्वायरमेंट है 200 मिलियन की मेन बोर्ड के लिए कि जी आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 200 मिलियन होना चाहिए। तो जब आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 200 मिलियन क्रॉस कर जाएगा, और क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने तकरीबन की भी होंगी, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके बढ़ जाएंगे, लेट से 500 हैं, इस तरह के हैं आपके शेयर होल्डर्स, तो आप हमारे पास माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेशन के अंदर भी आप कैपिटल रेजिंग कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं इसके अंदर। एक नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो जाएगा, फ्री फ्लोट अगर आपका 2.5 बिलियन कैपिटल वो होगा आपका। वो बेसिकली जैम बोर्ड पे रह के भी हो जाता है। मेरे पास जो कंपनीज आई हैं उनके फ्री फ्लोट ज्यादा ही थे। वंस यू सी के आप मार्केट के अंदर आ गए हैं ना, तो आप खुद जानबूझ के लिक्विडिटी के लिए फ्री फ्लोट बढ़ाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, बाय बैक का ऑप्शंस भी होते हैं कंपनी के पास। कंपनी अपने शेयर्स खुद भी बाय बैक कर सकती है। उसको लगता है कि ये प्राइस अट्रैक्टिव है, इसके ऊपर वो बाय बैक कर सकते हैं शेयर्स। ठीक है, ये एक चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो बेसिकली फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट है। कॉर्पोरेट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट, जब ये पूरी हो जाएंगी यू कैन इजीली माइग्रेट to the main board. And if you don't want to migrate, there is no compulsion on you to migrate. आप इसी फोल्ड में रह के भी बड़े हो सकते हैं। बट जाहिर ही बात है, प्रीमियम बोर्ड का एक अपना एक अलग चार्म होता है, उसकी एक अलग पुल होती है, उसका एक अलग ड्रॉ है। दोज आर समथिंग डिफरेंट। आगे चले जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर आईपीओ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक बाय द वे, बहुत कम इंटरवेंशन होती है, कोई इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बुक बिल्डिंग सिस्टम, ईआईपीओ सिस्टम, ये प्राइड जो हमारा सिस्टम है पब्लिक ऑफरिंग्स का, ये सारे ऑटोमेटेड सिस्टम है। जितनी भी फाइलिंग्स होंगी हमारे पास सारी ऑटोमेटेड होंगी। एसईसीपी और हम आपसे कोई इतनी खास डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे नहीं इसके अंदर। सो इट्स अ फेयरली डिजिटाइज्ड, जिसको बोलूँगा 90 to 95% डिजिटाइज प्रोसेस है। कुछ चीज़ें मे भी रिक्वायर्ड हो, बट नॉट दे डोंट अकाउंट फॉर मच। सो
these are a few things that you know we are doing. उसके बाद हमने एक प्रिलिमिनरी एवेल्युएशन शीट भी इसके अंदर दी हुई है, जो कि वी कैन शेयर विद कंपनीज, क्योंकि हमें वी लाइक टू कीप इन टच विद पीपल एंड कंपनीज। हाँ, जेम बोर्ड की फी हमने जो है वो टैक्स का तो कोई बेनिफिट नहीं होता, एसएमईज को जो टैक्स है, टैक्सेशन रेट है वही है, लेकिन फीस हमने इसकी काफ़ी मिनिमम की हुई है, यानी कि 50,000 हम इनिशियल फी लेते हैं, जबकि मेन बोर्ड के लिए हमारी मैक्सिमम फी जाती है 2.2 मिलियन। तो इस पे हम 50,000 पे इनिशियल लिस्टिंग फी लेते हैं, और एनुअल लिस्टिंग फी भी मैक्सिमम मैंने डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, वो 2 लाख या 2.5 लाख तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। हर टैक्स फ्री देखें, टैक्सेशन हम लोग तो कोई टैक्सेशन करते नहीं है, वी आर एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के ऊपर एक जमाने में था कि जी जो कंपनी लिस्ट कराएगी उसको उसको कुछ टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आ, अब तो आई थिंक वो भी खत्म कर दिया है, आई थिंक नहीं बल्कि आई एम वेरी श्योर कि वो खत्म हो चुका है। तो टैक्सेशन में कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो जी एफबीआर का और फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं। ऑल्दो हम अपना प्रपोजल जरूर देते हैं कि जी लिस्टेड कंपनीज को थोड़ा बहुत आप व्हाट यू शुड डू, इसके इंसेंटिव दें उनको लिस्ट कराने के लिए, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। So that's it from my side. I won't mind taking questions. जिसके जो questions हैं, please go ahead. We have if you need our presentation, we're going to share it with Ghazen so that he can give Sure. you वो go और उसके आगे कोई questions हो तो please go ahead. Right. So thank you so much, Abasa, for informative presentations. Also, I would like to request all the participants if they have any questions. So I'm opening the floor. So if you like to ask Abasa a question, you may raise your hand so that I can unmute you. Abasa, Junaid साहब का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली टू अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्टर PSX may suggest for some tax credit. I think it's a suggestion from his end. मैंने आपको बताया प्रपोजल तो हम लोग जाहिर बात है इसके अंदर डालते ही हैं, बट दिस इज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेजिंग कैपिटल, आई बिलीव। तो यस, वी हैव नोटेड योर सजेशन। ठीक है जी। ये प्रेजेंटेशन अगर आप देंगे तो इसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल। Huma Pass, she's saying thank you. I do not have any question जी 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 जी, at this time, योर but I do have सजेशन आर several वेलकम। suggestions will be. We'll be sharing this presentation. We have our email addresses in them. If you would be kind enough to email your suggestions to us, that would be really nice. I'd love to do that. So I'll get in touch with you and I'll talk to you, or maybe I can come and meet you at some time. It'll be great. Thank you very Most much for the welcome. presentation, and Allah Hafiz. Allah Hafiz ji. Thank you so much. Thank you so much. जी जी जी, statistics, thank you very much. I believe we have no further questions. Ghazi. Agreed. अच्छा, Thank so you. thank you ji, thank you, thank you, thank you for attending the session. Ghazan, your mic is off. Yeah, sorry, my bad. Is there any compliance legislation for JAM company, or same will be applicable for other listed companies? नहीं Hussain मैं Rashid साहब ने पूछा. Yeah. जी जी जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कंपनी मैंने आपको बताया, 2 रूट्स हैं हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का और एक है हमारे पास आपका प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो जो कंपनी पब्लिकली आ रही होगी जैम पे, उसके लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है वो सीसीजी की वो तो पूरी है, लेकिन जो कंपनी आईएम के थ्रू आ रही है उसके लिए 2 से 3 जो है हमारे पास रिलैक्सेशन है, जिसमें आपका फीमेल डायरेक्टरशिप आ जाती है, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और जिसमें आपकी ऑडिट कमेटी आ जाती है। तो ये 3 चीजें हैं जो 2 साल के लिए हम रिलैक्स रखते हैं इसके अंदर। वंस
और 2 साल में भी अगर लेट से वो पूरा नहीं कर सके तो 1 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है। सो बेसिकली 2 से 3 साल के लिए इन 2-3 चीज़ों के लिए आपके पास छूट है। Is there any other question from the participant side? Okay, Junaid Yunus Saab is asking, GM appears to be a great initiative. Thanks for the presentation and PSX and PICG. जी जी बिल्कुल, इट इज़ इंडीड Uh, अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों में से जो भी स्मॉल एंड मीडियम ओनर्स हैं, देखिए मेन बोर्ड का तो सभी को पता है, उस इस बोर्ड को ज़रूर यूटिलाइज करें बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट कैपिटल रेजिंग प्लेटफॉर्म एंड वी वुड लव कि हम लोग इसके अंदर मजीद बात करें। एज आई सेड कि Ghazan would be sharing our presentation with the participants, right? So yeah. you can connect with us, you can talk to us, you can give us your suggestions, how can we make it better? Obviously it's an evolving process and we need your suggestions, हमें आपकी एडवाइस की भी ज़रूरत है, सजेशंस की भी ज़रूरत है। एंड व्हेन यू नो आप लोगों को अगर हमारी हैंड होल्डिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, लेट्स से आप लिस्ट नहीं भी करा रहे हैं कोई स्ट्रक्चरिंग में, कोई गवर्नेंस के अंदर, खैर उसके लिए तो PICG है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग वगैरह में, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एज वेल सर। Any other questions from the participants? Right. I think, Avasa, we don't have any other questions, but I just want to tell all the participants that the video recording of this webinar will be available on Shareholder Agahi portal, which I shared the link in the chat box. You may access that. And also the presentation will be available as well. And Basab, I think we should be, concluding the webinar. I thank you to our speaker, जी जी बिल्कुल। Basab, for the insightful session, and to all participants for joining us today. We hope this webinar has enhanced your understanding of the GEM board as a platform for business growth and capital raising. Before closing, I request everyone to turn on their cameras for a group photo. Right, so I'm counting on 3. I'll be taking the picture, right? Ready, guys? 1, 2, 3. Be with me, please. Just need to take one more. Right. 1, 2, 3. Thank you so much, everyone. We look forward Thank you। for future webinars, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.